Hello everyone. Wish you all a very good evening. Hope you all are having a good week. I am Yes Saraf and I am from the business product team of Stockage. And welcome all of you to the Stockage Smart session. So as we all know, today we'll be learning about the Stockage scans, Stockage my combination scans and trending stocks. So without wasting any time, let me all tell you how we'll proceed further. So what we'll be doing is we'll have three different parts. In the first session, in the first part, I will be telling you all about the Stockade scans, how to use Stockade scans, and how we can get some benefit out of Stockade scans. And then we'll have a small Q&A session where I will be solving all your queries and doubts. Then we'll move forward to the my combination scans, wherein we'll learn how to make our customized combination scans based on the scans availability in stockage. And then again we'll have a small Q&A session, and then we'll proceed to the trending stocks, and we'll learn how we can catch opportunities during the intraday, during the market hours, and how it can help us in identifying good picks for intraday positions or for swing in positional trading, right? And then in the end, I will tell you that how we can use stockade scans, my combination scans, and trending stocks, all three in sync, and we can further enhance our analysis and our stock picking skills, right? So before without let's start again with the स्टॉकेज स्कैन्स. सो हेयर इज द स्कैन्स मॉड्यूल, और यहाँ पे प्रीमियम एनालिटिक्स के अंदर आपको स्कैन्स का आइकन दिखेगा. एंड लेट मी ऑल टेल यू that in stockage we provide more than 450 plus advanced scans, right? That is right, 450 plus advanced scans, out of which 70% of them are already free. And also I would like to let you all know that stockage was the first one in the Indian markets to launch this concept of scans, wherein within just clicks we can filter out stocks on the basis of advanced research logics, and we can like reduce our time of analysis to actually 2 seconds, because everything is done on clicks basis, right? So हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक स्कैन्स के साथ. सो in market there are multiple data points, right? There are n number of data points available in the market. So what we have done is we have categorized brought 7 categories of data points, and we have categorized all our scans based on those 7 categories. So what are those 7 categories? The first category is price scans, which deals with the price action. आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुना होगा, प्राइस एक्शन. सो प्राइस स्कैन्स के अंदर आप लोग को सारा का सारा प्राइस एक्शन रिलेटेड आपको स्कैन्स मिलेगा. देन वी हैव वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स. सो वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स के अंदर आपको जो मार्केट में जो स्टॉक्स का मोमेंटम चल रहा है, जो सप्लाई एंड डिमांड चल रहा है, उसका नॉलेज आपको उससे मिलेगा. Then we have technical scans, in which we have covered almost all of the important and like widely used technical indicators available in the market. Then we have fundamental scans, in which we have also covered the all the aspects of the fundamental analysis and fundamental points in the concept of scanners. Then we have futures and option scans, strike price option scans, which is totally related to the FNO data points. And obviously these scans are useful for FNO traders as well, and as well for cash traders as well, because with the help of knowing the supply and demand and the OI trend, people can find out stocks to trade in equity cash market as well, right? And then we have candlestick scans, in which just like we have price scans, so candlestick patterns are also very important in understanding the market trends, in understanding the trends of any stock with respect to the patterns that they are forming on the charts. So right, so let's start with the price scans. सो इन प्राइस स्कैन्स, अगर मैं आप लोग को प्राइस एक्शन का बात करूं, सो एक आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि प्राइस एक्शन, व्हाट इज प्राइस एक्शन. सो प्राइस एक्शन इज बेसिकली द प्राइस मूवमेंट ऑफ एनी स्टॉक, दैट इज OHLC. आज हम लोग जब लेवल्स का बात करते हैं, तो किसी भी स्टॉक का जो OHLC होता है, वो अपने आप में एक क्लियर कट इंडिकेशन रहता है कि हाउ द स्टॉक इज परफॉर्मिंग और हाउ द स्टॉक विल परफॉर्म इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस OHLC लेवल्स. वो चाहे डेली लेवल पे हो, या इंट्राडे लेवल पे हो, या वीकली लेवल पे हो, या मंथली लेवल पे हो. सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे आपको कई सारे पीरियोडिक स्कैन्स दिख रहे होंगे. प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन्स, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट स्कैन्स, 52 वीक, 2 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स. तो ये सारे के सारे पीरियोडिक स्कैन्स है. सो लेट स्टार्ट विथ वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स.
सो इन स्टॉकेज व्हाट वी डी एम्फेसाइज ऑन कि हम लोग ये एम्फेसाइज करते हैं कि वॉट एवर स्कैन वी मेक और वॉट एवर फीचर और डेटा पॉइंट वी मेक, वी प्रायोरिटाइज कि जो भी हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं या जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट आर इजिली इंटरप्रेटेबल। मतलब आप कुछ भी चीज पढ़ोगे या इफ यू रीड एनी नेम ऑफ द स्कैन, देन इट विल बी वेरी क्लियर कि उस वो स्कैन बोलना क्या चाह रहा है, what does that scan wants to tell you, or what does that scan is all about, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्कैन इज क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, तो इट इज वेरी मच क्लियर कि व्हाट डज दिस स्कैन टेल्स अस, दैट इसमें वो सारे स्टॉक्स फिल्टर होंगे, ऑल दो स्टॉक्स विल गेट फिल्टर्ड इन दिस स्कैन विच हैव क्लोज्ड अबव इट्स प्रीवियस लास्ट वीक हाई, क्रॉसिंग इट, राइट? तो हम लोग अभी स्कैन के अंदर बढ़ते हैं। तो पहले आउटपुट पे, बिफोर प्रोसीडिंग टू द आउटपुट एंड द एनालिसिस ऑफ द स्कैन, लेट मी मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंटायर स्कैन सेक्शन, दिस एंटायर स्कैन मॉड्यूल, कि व्हाट आर दी फीचर्स अवेलेबल टू ऑल आर यूजर्स एंड आप लोग उसको कैसे कैसे यूज करके आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप कोई भी स्कैन में जा रहे हो ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट स्कैन इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्कैन। तो आप किसी भी स्कैन में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक आई सेक्शन दिखेगा, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस आई सेक्शन एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपको मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस दिख रहा है हर एक स्कैन का। सो इट विल टेल यू कि व्हाट दैट स्कैन इज ऑल अबाउट, वो स्कैन क्या स्टॉक्स फिल्टर कर रहा है, किस बेसिस पे फिल्टर कर रहा है, एंड हाउ टू यूज दैट रेस्पेक्टिव स्कैन। तो इससे आपका स्कैन का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हाफ नॉलेज के बेसिस पे अगर आप अपना एनालिसिस कर रहे हो तो इट कैन मिसलीड यू। तो इसीलिए इट इज बेटर कि आप कोई भी एनालिटिक टूल यूज कर रहे हो तो आप उसको पहले समझ लो कि उसको यूज कैसे करना है एंड उसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्कैन सेक्शन के ऊपर। तो जैसे आप लोग यहाँ पे ये आउटपुट दिख रहा है, तो सबसे पहले आप लोग को ये मेजर स्टॉक्स का ये फिल्टर दिख रहा होगा, राइट? ये हम लोग का इन हाउस डिफॉल्ट फिल्टर है, मेजर स्टॉक्स इज आर इन हाउस डिफॉल्ट फिल्टर। वेयर एवर यू विल गो यू विल सी, जहां पे भी फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है वहां पे यू विल सी कि मेजर स्टॉक्स इज द डिफॉल्ट फिल्टर। सो व्हाट इज मेजर स्टॉक्स? क्योंकि मेजर स्टॉक्स मार्केट में तो कोई ऐसा टर्म है नहीं, तो व्हाट वी हैव डन इज कि मेजर स्टॉक्स इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएससी 500 स्टॉक्स। हम लोग ने क्या किया है, जो टॉप एनएससी के 500 स्टॉक्स है एंड जो टॉप बीएससी के 500 स्टॉक्स है, एनएससी 500 इंडेक्स एंड बीएससी 500 इंडेक्स, हम लोग ने उन दोनों इंडेक्स के स्टॉक्स को कंबाइन करके कंबाइन लिस्ट बनाया है। बिकॉज व्हाट वी फील इज कि वट एवर एनालिटिक्स वी आर प्रोवाइडिंग और वट एवर एनालिटिक्स वी आर डूइंग इट, इफ यू गेट टू सी अ सेंस ऑफ द ओवरऑल मार्केट, तो इट इज बेटर फॉर अस। सो अगर हम लोग मेजर स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं, मेजर स्टॉक से एनालाइज कर रहे हैं, तो दैट इज द टॉप 500 कंपनीज इन द मार्केट। सो उससे आपको एक मार्केट का, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अगर आप किसी बुलिश स्कैन के अंदर हैं and if the output is very huge, if the count of output is very huge, then you can perceive that the अभी मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में है। वही अगर आउटपुट बहुत छोटा होगा या आउटपुट बहुत कम होगा, देन यू विल सी कि मार्केट्स नीचे अभी बेयरिश ट्रेंड में, मार्केट्स आर फॉलिंग। इसलिए वेरी फ्यू स्टॉक्स आर एबल टू fulfill the criteria of those bullish scans। ठीक है, so major stocks, let me repeat, major stocks is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks। ठीक है, अब अब ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये यहाँ पे ऑब्वियसली देयर आर 5000 स्टॉक्स, तो कोई भी स्कैन के अंदर देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्टॉक्स इफ दे आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। तो हो सकता है कि आप किसी भी स्कैन में जाओ एंड देयर आर 500 स्टॉक्स और 1000 स्टॉक्स दैट आर गेटिंग फुलफिल्ड। तो अगर आपको उसको और फर्दर फिल्टर करना है, तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज, वी हैव दिस एडवांस फिल्टर्स ऑप्शन, जहां पे आपको यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स दिए जाएंगे, दैट इज बाय इंपॉर्टेंस। यू कैन फिल्टर द आउटपुट बाय इंपॉर्टेंस, एज इन यू इफ यू कैन ऑल्सो ओनली फिल्टर एनएससी स्टॉक्स और बीएससी स्टॉक्स और एनएससी एफएनओ स्टॉक्स, और यू कैन फिल्टर जो अभी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जो मार्केट में नए आए हैं एंड दे आर वेरी रिस्क अवर्स एंड दे वांट टू ट्रेड इन लेस रिस्की स्टॉक्स, सो दे प्रेफर टू ट्रेड ओनली निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो आप खाली निफ्टी 50 का फिल्टर लगा सकते हो। या इफ यू फील कि अभी पीएसयू स्टॉक्स काफी काफी ज्यादा लाइमलाइट में है एंड इफ यू वांट टू ट्रैक पीएसयू स्टॉक्स, देन यू कैन अप्लाई द फिल्टर ऑफ पीएसयू स्टॉक्स। सेम वे वी हैव फिल्टर्स ऑफ प्राइस, आप प्राइस के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। देन वी हैव बेसिस ऑफ मार्केट कैप कैटेगरीज, कि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में फिल्टर करना है या आपको सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। देन यू कैन एक्चुअली फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, आपको 100 करोड़ की नीचे की कंपनी चाहिए या 10,000 करोड़ की ऊपर की कंपनी चाहिए, वॉट एवर इट इज। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऑब्वियसली ऑल सेक्टर्स डू नॉट परफॉर्म एवरी डे, राइट? हर सेक्टर का एक ट्रेंड होता है, हर सेक्टर का एक पीरियड होता है व्हेन दे परफॉर्म वेरी वेल। सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज
You all can filter on the basis of sector as well. कि आपको जो भी सेक्टर लग रहा है, कि फॉर एग्जांपल अगर आज बैंकिंग सेक्टर चला है या आज आपको लग रहा है ऑटो सेक्टर चला है एंड इट विल कंटिन्यू इट्स मोमेंटम, देन यू कैन फिल्टर आउट द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन दोज रेस्पेक्टिव सेक्टर्स बाय सिलेक्टिंग द रेस्पेक्टिव सेक्टर ऑफ योर चॉइस. तो ऐसे करके आप फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड यू कैन एनहांस द आउटपुट मोर इवन. देन वी ऑल्सो प्रोवाइड द डाउनलोड ऑप्शन, कि अगर आप लोग को फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टॉक देख लिया एंड अगर आप लोग को फर्दर और उसमें एनालिसिस करना है या फर्दर उसमें आप लोग को एक्सेल के अंदर कुछ और वर्किंग करना है, देन यू कैन डाउनलोड द एंटायर डेटा बेस्ड ऑन योर रिस्पेक्टिव फिल्टर एंड द एंटायर डेटा विल गेट डाउनलोडेड इन अ CSV फॉर्मेट. उसमें आगे जाके आपको जो भी अपना फर्दर एनालिसिस करना है आप लोग वो एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है. अब जो सबसे बेस्ट पार्ट आता है किसी भी स्कैन मॉड्यूल का, वो ये है कि हम लोग बैक टेस्टिंग का एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. दैट इज कि फॉर एग्जांपल इफ यू कम इनटू अ स्कैन और इफ यू हैव पिक्ड अप अ स्कैन, दैट विल इफ यू फील दैट विल हेल्प यू पिक गुड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग और गुड पिक स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डेज मार्केट. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, आप हम लोग 7 डेज का डेटा प्रोवाइड करते हैं. आप लोग जाके फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक में आए हो एंड इफ यू वांट टू सी कि हाउ द स्टॉक्स विच आर कमिंग इनटू दिस स्कैन परफॉर्म और हैव परफॉर्म प्रीवियसली, देन आप लोग 6 मई को जाके चेक कर सकते हो कि 6 मई को ब्रिगेड एंटरप्राइजेस आया था सबसे टॉप पे. सो यू कैन इवेंचुअली चेक कि हाउ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस हैव परफॉर्म आफ्टर कमिंग इनटू दिस स्कैन. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कैन सेक्शन, की यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. अब इसका मतलब क्या है क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. तो एज आई कैन सी BASF इंडिया, इसका जो लास्ट वीक का हाई था इट वाज 4377. सो लेट्स गो इनटू द चार्ट्स. लास्ट वीक का डेट वाज दिस. सो मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट वीक हाई 4377. सो इस लास्ट वीक के हाई के नीचे लास्ट वीक क्लोजिंग आया था. दैट वाज समवेयर नियर 4223. तो व्हाट दिस स्टॉक हैज डन इज कि इस स्टॉक ने कल, एज वी ऑल नो स्टॉकेज इज एन ईओडी एप्लीकेशन, तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है स्कैन का, ये आपको कल तक का डेटा दिख रहा है. इवेंचुअली आज का जो डेटा है इट विल गेट अपडेटेड बाय 7-7:30 एंड यू ऑल विल रिसीव द रेस्पेक्टिव पुश नोटिफिकेशंस. सो व्हाट वी कैन सी इज कि कल येस्टरडे BASF इंडिया ने अपने लास्ट वीक के हाई को 4377 को क्रॉस किया, नीचे से क्रॉस किया एंड ऊपर में जाके बंद हुआ 4617 पे, विच गिव्स मी अ सिग्नल कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक अभी इस वीक में, करंट वीक में बहुत पॉजिटिव है एंड इट इज इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. ठीक है. ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन कल का क्लोजिंग के नाम स्टॉक में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आया था एंड देन वी हैव सीन अ प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन इन दिस स्टॉक. तो ऑब्वियसली बट आप ये देखोगे कल का जितना उसके अंदर राइज आया था, कल का जो मोमेंटम आया था, उसके नाम पे आज जो प्रॉफिट बुकिंग आया विच इज वेरी लेस, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि डिस्पाइट ऑफ द फ्लैट मार्केट विच वेयर टुडे, या जो भी मार्केट में वोलाटिलिटी है, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, ये इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये स्टॉक अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द करंट वीक. ठीक है. अब आप लोग अगर और स्टॉक देखोगे जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है. इस स्टॉक ने भी अपना लास्ट वीक के हाई को क्रॉस किया, दैट वाज 286.50. इस स्टॉक ने कल 301 पे क्लोजिंग दिया एंड एज वी कैन सी कि ये स्टॉक आज ओपन होने के बाद 301 का 327 तक गया है. तो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे नॉर्मली क्या होता है कि अगर कभी भी किसी स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है ना, से 5 to 10% का मूवमेंट आता है, देन ऑन दी फॉलोइंग डे देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोज, कि या वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है और या उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव चेक दिस स्कैन येस्टरडे ओनली एंड इफ यू हैव फिल्टर्ड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, तो आपको वो स्टॉक आज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता. एंड इस स्टॉक के अंदर एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी था टू डू सम इंट्राडे ट्रेडिंग इन दिस रेस्पेक्टिव स्टॉक, क्योंकि 301 से 327 इज क्लियरली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 to 9% आपको इंट्राडे के अंदर ही आपको मिल जाता. बट ऑब्वियसली ये स्टॉक आज भी 1.25% ऊपर ही बंद हुआ है. तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये जो स्टॉक है ये अभी करंट वीक लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. राइट. सो मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक सिंगल स्कैन के बेसिस पे आप लोग स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन डू इट, बट बेटर होता है कि आप लोग जितना स्कैन्स को स्टडी करोगे या आप लोग जितने और अलग इंडिकेटर्स लगाओगे, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग का कन्विक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्कैन और एनी स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन ओनली यू कैन प्रोसीड. और
यू कैन चेक फॉर अदर पैरामीटर्स एज वेल कि स्टॉक और बाकी क्या है, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है क्या, क्या स्टॉक ने कोई ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम इट्स 52 वीक लेवल्स, ऑल टाइम लेवल्स, या मंथली हाई, वीकली हाई लेवल पे। तो जैसे ये था लास्ट वीक हाई के ऊपर का लेवल, तो ये स्टॉक ने लास्ट वीक हाई के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो विच मीन्स कि इस करंट वीक के अंदर ये जो सारे स्टॉक्स है ये काफी पॉजिटिव है, राइट। अगर आप वेदांता भी देखोगे फॉर एग्जांपल, वेदांता ने अपना लास्ट वीक का हाई तोड़ा, दैट वाज 418.70। कल स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आया था एंड इट क्लोज एट 432.55। आज भी अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आया था एंड इट मेड अ हाई टिल 449। तो आज इस स्टॉक के अंदर भी क्लियर कट एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी था, राइट, फॉर ऑल दोज पीपल एंड ऑल जो जिन लोगों को इंट्राडे नहीं पसंद, स्टिल दिस स्टॉक इज अ वेरी गुड स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू टेक्निकल एंड विथ रेस्पेक्ट टू चार्ट्स ऑन दिस करंट वीक लेवल। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, कि मैं आप लोगों को किसी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग कि आप कैसे कैसे स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में क्या है ना कि जो भी ये जितने भी स्कैनर्स है, लेट मी ऑल टेल यू, ये इस स्कैनर्स के अंदर सिर्फ लॉजिक हम लोग का लिखा हुआ है, बट अगर कोई भी स्टॉक किसी भी स्कैनर के अंदर क्वालिफाई हो रहा है, तो इट इज ओनली बिकॉज कि उस स्टॉक ने कुछ ऐसा मूवमेंट दिया है, बीट अ बुलिश मूवमेंट, बीट अ बेरिश मूवमेंट, जिसके वजह से वो स्टॉक इस स्कैन में क्वालिफाई हुआ। तो इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन डेटा, राइट। तो जो स्टॉक जैसा परफॉर्म कर रहा है उसी के बेसिस पे वी आर फिल्टरिंग इट आउट, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने स्टॉक्स का डेटा देखा, तो अब अगर आप लोग को ये स्कैन अच्छा लगा, सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज कि आप लोग लास्ट डेट में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग सेवेंथ में चले गए, तो आप सेवेंथ में जाके देख लो कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आया था। सो इफ यू सी, दिस वॉज सेवेंथ में आई गेस, ये राइट। तो सेवेंथ में को आया था एंड दिस स्टॉक ने एक कंटिन्यूड मोमेंटम दिखाया ऑन 8 में, एंड स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर नीचे करता रहा, बट स्टिल दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव उस दिन का जो लो था। सो अभी भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, जब तक ये स्टॉक इस उस दिन का लो को तोड़ता नहीं है, तो ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो सी दिस इज हाउ वी कैन फिल्टर आउट स्टॉक्स, एंड हम लोग इस सी अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स प्लान कर सकते हैं on the basis of price action. So let's move ahead to other price scans. So जैसे मंथली ब्रेकआउट है, वी हैव 52 वीक ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। सो मैं आप लोग को ऑल टाइम ब्रेकआउट समझाता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैन क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई, सो दिस इज वेरी मच क्लियर कि दिस कैन विल प्रोवाइड यू दो स्टॉक्स जिसके अंदर आज एक ऑल या कल एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था। दैट मीन्स कि इन स्टॉक्स ने अपना जो ऑल टाइम हाई था कल के पहले तक का, उसको नीचे से क्रॉस करके कल एक ऊपर में क्लोजिंग दिया। एज यू कैन सी बीएसएफ इंडिया का 4377 का ऑल टाइम हाई था एंड कल स्टॉक ने 4617 पे क्लोजिंग दिया, विच मीन्स कि इट इज अ क्लियर कट ऑल टाइम ब्रेकआउट, ठीक है। तो इस स्कैन के अंदर आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो ब्रेकआउट दे चुके हैं। तो अब व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिनेरियोज, या इन सारे स्टॉक्स के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, और या विल सी कि इसके अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड द स्टॉक्स विल इवेंचुअली करेक्ट। और फॉर एग्जांपल अगर आप जिंदल स्टील एंड पावर देखोगे या फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज देखोगे जो मैंने आपको दिखाया, तो इन स्टॉक्स के अंदर आज एक कंटिन्यूड मोमेंटम आया है। जिंदल स्टील के अंदर भी अगर आप इसका चार्ट देखोगे, जिंदल स्टील का भी आप जब एक चार्ट देखोगे, तो आज स्टॉक के अंदर देखोगे कि आज एक कंटिन्यूड मोमेंटम आया है एंड इस स्टॉक ने आज एक अपना नया हाई बनाया है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये जो स्कैन है, ये जो स्टॉक है, ये आज वापस इस स्कैन के अंदर आएगा, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन एनी स्टॉक गिव्स अ 52 वीक ब्रेकआउट या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो पीपल एंटर एट हायर लेवल्स एंड देन पीपल गेट स्टक। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो ऊपर में बाई करके अटक जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बॉट एट वेरी हाई लेवल्स एंड देन दे इवेंचुअली सी अ प्रॉफिट बुकिंग और अ करेक्शन, एंड उसकी वजह से या तो उनको लॉस होता है या तो दे हैव टू होल्ड दो स्टॉक्स, राइट। तो इससे बेटर एक सिनेरियो होता है कि अगर हम लोग वो स्टॉक्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर ले कि वो कौन से स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग का स्कैन है, जैसे क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन या क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस जोन, मैं आप लोग को बता दूं, ये जितने भी प्राइस स्कैन है सबके अंदर एक जोन का स्कैन है। तो व्हाट इज दिस जोन? तो ये हम लोग का स्टॉकेज का इन हाउस एक हम लोग का लॉजिक दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग जो भी लेवल्स है, हाई लेवल्स या लो लेवल्स के 15% के रेंज को हम लोग उसको जोन पकड़ते हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज, सो उसका जो हाई जोन हो जाएगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 85 रुपीज, 100 माइनस 15%। सो एज सून एज दैट स्टॉक
क्लोजेस क्रॉसेस एंड क्लोजेस अबव 85, विच मीन्स कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन के अंदर एंटर कर चुका है. सो फॉर एग्जाम्पल मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, इसका जो ऑल टाइम हाई था इट वॉज 2524.80. इसका जो प्रीवियस क्लोज था दैट वॉज 2132.60. इसको इसने क्लोज करके अपने एक नया मूवमेंट दिया है एंड इट क्लोज एट 2333.60. अब अगर इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, so obviously it will have to pass this journey from 2333.80 to 2524. तो ये जो बीच का जो गैप है ना 7.6% का, आपको यहाँ पे गैप भी दिख जाएगा. आप ये 7.6% को आप लोग इवेंचुअली पहले ही आइडेंटिफाई करके आप लोग एंट्री ले सकते हो इफ यू फील कि ये स्टॉक का मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो आप लोग का क्या होगा ना, आप लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा. क्यों? चूंकि आप लोग ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो स्टॉक है ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम. अब ऑब्वियसली वो आपको उसके चार्ट्स देके और अदर फर्दर पैरामीटर या कोई न्यूज है वो देके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बट इससे क्या होगा, आप लोग का एंट्री बहुत सही होगा. एंड जब स्टॉक एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोर पोजिशन, what you will do is you will book your positions, you will book your profits. तो उसमें क्या होगा, आप लोग का एंट्री एंड एग्जिट दोनों बहुत अच्छा होगा, राइट? तो आप अगर आप इस स्कैन को जाके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा 52 वीक हाई ब्रेकआउट के अंदर हर किसी के अंदर ये हाई एंड लो जोन्स है. तो इसके बेसिस पे जो काफी ज्यादा स्टॉक्स आप फिल्टर कर सकते हो. देन वी हैव 1 डे 2 डे 3 डे बिहेवियर स्कैन्स, डेली परफॉर्मेंस स्कैन्स. Then let's come to relative strength 55 day scans. So let me all tell you, अगर आप लोग विवेक सर को फॉलो करते हो या विवेक सर के आप लोग ने वीडियोस या पोस्ट देखे हैं, सो आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुना होगा RS55. So let me all tell you, this indicator or this concept is developed by Vivek Bajaj himself, and he is a strong follower of this indicator and he strongly believes in it. एंड उनके बहुत सारे आप देखोगे, उनके जो भी स्टॉक है सोशल पे पोस्ट आते हैं या यूट्यूब पे जो वीडियोस है या उनका जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर RS55 ही यूजेस दिस टर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे वो अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करते हैं. एंड अगर आपको इस इंडिकेटर को लेके कैसे यूज करना है, देन यू कैन श्योरली गो टू द यूट्यूब चैनल और चेक हिज पोस्ट ऑन सॉकेट सोशल, यू विल इवेंचुअली सी वो कैसे अपना एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं. सो व्हाट डज दिस कैन टेल्स अस कि 55 डेज विच इज इवेंचुअली 3 मंथ्स, राइट, विच इज इवेंचुअली 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स या सेक्टोरल इंडेक्स का आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो. दिस कैन टेल्स अस कि कल ये वो सारे स्टॉक्स है जिन्होंने कल ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स दैट इज निफ्टी 50 इसका आउट परफॉर्म करना चालू किया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो सबसे टॉप पे है कल, इसने कल ही अपना RS और जो 0.0 के पहले नीचे था, कल इस स्टॉक का RS था 0.09, विच इज क्लियरली इंडिकेट कि ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से अपने निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है. इफ यू गो इनसाइड देन व्हाट वी सी कि इस स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू हुआ है. एंड ये स्टॉक आज भी इस स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट आया है, राइट? अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे देन आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन रहे हैं. एंड दिस स्टॉक इज इन अ वेरी गुड जोन. एंड ये स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अपना 52 वीक हाई का ब्रेकआउट भी दे दे, व्हाट्स एवर इट्स द सिनेरियो कैन बी. बट दिस स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग करेंटली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स निफ्टी 50 इंडेक्स. तो आप ऐसे करके भी कई सारे स्टॉक्स है जो आप फिल्टर आउट कर सकते हो. सो ऐसे और भी स्कैन्स है, एब्सोल्यूट रिटर्न स्कैन्स, वीवैप स्कैन्स. तो आप लोग ऑब्वियसली आगे जाके आप लोग इसको प्लीज लुक आउट करो. देन वी हैव वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स. सो हम लोग ने वीकली ब्रेकआउट पकड़ा था, तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी वीकली स्कैन्स. सो लेट मी ऑल टेल यू, जैसे हम लोग के डेली स्कैन्स है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेली स्कैन्स, वीकली स्कैन्स एंड मंथली स्कैन्स. सो इन दिस वीक वी कंसिडर कैलेंडर वीक्स इन कैलेंडर मंथ्स. तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस स्कैन के अंदर जाते हैं, दैट इज हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक. सो आज हम लोग वेनेसडे पे खड़े हैं, ऑल दीज स्कैन्स आर बेस्ड टिल yesterday's डेटा. तो व्हाट वी कैन सी एंड इंटरप्रेट कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड दिस स्टॉक के अंदर इफ वी सी की इस करंट 2 दिन के अंदर विच इज फॉर्मिंग दिस वीक, इस स्टॉक में जो डिलीवरी हुई है दैट इज 4.3x greater than the average delivery quantity of 5 weeks of the stock. So what is this average delivery quantity? अगर आप डेली स्कैन्स में जाओगे तब एवरेज डिलीवरी इज कंसिडर्ड फॉर 5 days. आप लोग वीक्स में हो तो इट इज 5 weeks, एंड आप लोग मंथ्स में हो तो इट इज 5 months. तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इज कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के अंदर कंपेयर टू द एवरेज ऑफ प्रीवियस 5 weeks,
सिर्फ 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूजडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर इतनी अच्छी डिलीवरी हुई है दैट इट हैज the delivery has grown from 4.3x values. Same goes for traded quantity. Traded quantity भी was 6.6x greater than its average traded quantity. So what does it tells us कि अगर आप प्राइस के साथ इसको रिलेट करोगे then you will eventually see कि compared to the last week इस 2 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर 15.8% का डाउनफॉल आया है, बट पीपल आर एक्चुअली बाइंग दिस स्टॉक। पीपल इस लोग हैं जो इस स्टॉक्स को इतने नीचे दाम पे बाई कर रहे हैं। सो व्हाट यू विल सी कि इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई है। द वोलेटिलिटी इन दिस स्टॉक इज वेरी हाई ड्यू टू सो मच वॉल्यूम्स एंड सो मच डिलीवरी क्वांटिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स। अब ऑब्वियसली आगे जाके आप लोग मंथली स्कैन्स एंड डिलीवरी स्कैन्स आप चेक कर सकते हो। देन वी हैव टेक्निकल स्कैन्स। सो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, right? Everyone, every trader or every investor has their own particular strategies या particular respective indicators, and सारे indicators same data points के ऊपर ही बने हुए हैं, that is price points and volume points. So in Socket what we have done is we have tried to cover almost all of the important and highly used indicators over here, and we have tried to come up with the best scans possible. सो आप जिस भी स्कैन्स को देखना चाहोगे आप देख सकते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स, इट्स बेटर यू स्टार्ट विद 1 or 2 इंडिकेटर्स एंड अंडरस्टैंड कि आप लोगों को वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड उसका आउटपुट से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज एवरी इंडिकेटर हैज देयर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो आपको उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली आपको उसको ट्रेड एंड समझना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। So let's start with simple moving average scans. So what is simple moving average? If I go in a layman's term, then अगर आप लोग जैसे 20 SMA का अगर आप लोग मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, then what is 20 SMA? 20 SMA is the average of closing price of previous 20 trading days. किसी भी स्टॉक का लास्ट 20 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो एवरेज है दैट इज मेरा आज का 20 SMA। ठीक है। सो व्हाई दिस एवरेज कम्स, क्योंकि एवरेज से हम लोग को ये समझ में आता है कि जो स्टॉक है ना ये अपने एवरेज की बेसिस पे कितना ट्रेड कर रहा है। अगर कोई स्टॉक 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब वो स्टॉक लास्ट 20 डेज का मोमेंटम में अभी ऊपर है, दैट स्टॉक इज 20 डेज के एवरेज जो उसका ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है। So there are multiple scans in this. So let me tell you the two most important and favorite scans out there in the market. That is 50 SMA crossing 100 SMA from below or above, or 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो और अबव। ठीक है। सो हम लोग जो इसको जो क्रॉसिंग अबव है ना इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश क्रॉस ओवर, कि कोई भी छोटा SMA, इफ अ स्मॉलर वैल्यू SMA क्रॉसेस अबव अ लार्जर वैल्यू SMA, then we term it as golden crossover. So 50 and 100 and 50 and 200 are golden crossover. And same ways में अगर 50 SMA crosses 200 SMA from above, that means कि अगर कोई छोटा SMA किसी भी बड़े एसएमए को ऊपर से क्रॉस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर, दैट इज अ नेगेटिव स्कैन, दैट इज अ नेगेटिव इंडिकेटर। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग जैसे 50 एसएमए एंड 100 एसएमए को समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है। सो मैं चार्ट के थ्रू आपको दोनों एग्जांपल समझाता हूँ। सो दी एज यू ऑल कैन सी जो पिंक लाइन है दैट इज दी एसएमए 50, एंड जो ब्राउन लाइन है दैट इज दी एसएमए 100। तो इस स्कैन के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ एट दिस लेवल, एज यू कैन सी एट दिस लेवल एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ, एंड यू कैन सी कि द स्टॉक जिस प्राइस पे क्रॉसओवर हुआ दैट वाज 344.70, एंड उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे आके इस स्टॉक के अंदर एक डेथ क्रॉसओवर बना। तो एज यू कैन सी कि दिस स्टॉक रोज फ्रॉम 344 टू 436, राइट, विद इन अ वेरी फ्यू स्पैन ऑफ टाइम, तो विच इज क्लियरली और अराउंड 20% इंक्रीज। फिर स्टॉक के अंदर एक डेथ क्रॉसओवर हुआ, लेकिन डेथ क्रॉसओवर वाज नॉट सो एविडेंट क्योंकि स्टॉक के अंदर ऐसा कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। एंड देन अगेन देयर वाज अ गोल्डन क्रॉसओवर इन दिस स्टॉक एट द लेवल ऑफ 459.80, एंड देन यू कैन सी कि ये स्टॉक अभी तक नहीं दिया था, एंड एट दिस पॉइंट दैट वाज ऑन 27th मार्च इस स्टॉक के अंदर एक डेथ क्रॉसओवर वापस से बेरिश क्रॉसओवर आया एट द प्राइस ऑफ 776, which you all can see कि it is a clear cut almost 70 to 80% return.
सो अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडर्स है या आप लोग स्विंग ट्रेडर्स है, देन इफ यू ट्राई एंड ट्रैक एसएमए और ईएमए, देन यू विल फाइंड एक्चुअली गुड अपॉर्चुनिटीज, एंड इसके बेसिस पे भी आप लोग अपना एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसओवर्स। बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू चेक विद अदर इंडिकेटर्स एज वेल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट हम लोग को फेक ब्रेकआउट्स या फेक क्रॉसओवर देते हैं। जैसे आप लोग ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर हुआ था, बट इट कुडंट सस्टेन टू मच सेलिंग, इसलिए फिर वापस से एक बुलिश क्रॉसओवर आया, गोल्डन क्रॉसओवर आया, एंड द स्टॉक रोज। सेम वे में आप यहाँ पे ही देखोगे, एट दिस पॉइंट जब इसके अंदर एक डेथ क्रॉसओवर आया, बट द स्टॉक कंटिन्यू टू रोज, एंड फिर स्टॉक के अंदर वापस से येस्टरडे एक बुलिश क्रॉसओवर, दैट वाज गोल्डन क्रॉसओवर बन गया। ठीक है। सो एसएमएस आर बेसिकली द एवरेज, इट टेल्स यू द ट्रेंड ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टॉक। तो by this example, I've tried to explain the bullish crossover as well and as the bearish crossover as well. तो ऐसे ही करके हम लोग का 50 एंड 200 एसएमए भी है, आप इसको भी ट्रैक रखोगे, सो यू विल इवेंचुअली सी कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो, देन 50 एसएमए एंड 200 एसएमए या 50 एसएमए एंड 100 एसएमए आर दी की एसएमए। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म स्विंग करना है, या आपको 1 मंथ 2 मंथ, अगर आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स लेने हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको ईएमए चूज करना पड़ेगा। देन इन दैट केस यू कैन चूज इधर 20 एसएमए और 50 एसएमए, कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एंड 50 एसएमए। ठीक है। सो आपको आपके पीरियड के हिसाब से आपको इंडिकेटर्स चूज करने पड़ेंगे। ठीक है। सो दिस वाज एसएमए ईएमए, देन वी हैव सीसीआई, देन वी हैव आरएसआई एज वेल। जैसे मैंने ऊपर में RS55 आपको समझाया था, तो सेम वे में आरएसआई भी विवेक सर का काफी ज्यादा फेवरेट इंडिकेटर है। एंड इफ यू इवेंचुअली सी हिज पोस्ट एंड हिज वीडियोस, देन उनका कंबाइंड एक सेटअप है ऑफ RS55 एंड आरएसआई, जो वो काफी ज्यादा लोगों को बताते भी है, सिखाते भी है, एंड यू विल इवेंचुअली सी कि इसी RS55 एंड आरएसआई के सेटअप की बेसिस पे ही वो काफी सारे ट्रेड भी लेते हैं। So if you want to go and check out, then you can obviously check out, like I said, on his Stockist social post or on his YouTube videos where he teaches how to trade with RS55 and RSI model. ठीक है। सो आरएसआई के थ्रू भी हम लोग को काफी कुछ स्ट्रेंथ पता चलता है स्टॉक्स का, कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बुलिश जोन में है, या वो लोग ट्रेंड मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, या ओवरबॉट जोन में है, या ओवरसोल्ड जोन में है। And in the last release, let me all tell you that we have released weekly relative strength index scans, weekly parabolic SAR scans, and weekly super trend scans. And in the coming releases, we are planning to release more weekly indicators. क्योंकि डेली स्कैन्स जो है वो आर मोर फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बट ये जितने भी वीकली स्कैन्स है, दीज आर फॉर मोर फॉर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स। तो आप लोग ये अगर पीपल हु आर इन्वेस्टर्स आउट हियर, देन वो लोग को अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड्स के लिए लेना है, फॉर एग्जांपल 6 to 8 months और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन इवेंचुअली चेक आउट दी वीकली स्कैन्स एज वेल। देन वी हैव मनी फ्लो इंडेक्स, विलियम परसेंटेज आर, आरओसी, एमएसीडी, एडीएक्स, एटीआर, देन पैराबोलिक्स आर, वीकली पैराबोलिक्स आर। लेट्स अंडरस्टैंड सुपर ट्रेंड स्कैन्स। सो फॉर एग्जांपल, सुपर ट्रेंड स्कैन्स के अंदर क्या होता है ना, आपको बाय और सेल सिग्नल जनरेट होता है। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, लेट मी ऑल टेल यू अगेन विद एन एग्जांपल। तो लेट्स चेक दी 1 year चार्ट ऑफ अडानी एंटरप्राइज। तो फॉर एग्जांपल, you will have to understand कि when this super trend line, that is this green line, is trading below its prices, that means कि that stock is in a buy zone, it is in a buy signal. As soon as this green line shifts upward the above the prices and it turns red, it means a sell signal is generated. That means at this point a sell signal was generated. So as you can see कि यहाँ पे कई सारे अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर फेक सिग्नल्स प्रोवाइड हुए बेस्ड ऑन द डेटा, कि यहाँ पे आपको क्लियर कट मूव नहीं मिल रहा, बट एट दिस पॉइंट इफ यू सी, या एट दिस पॉइंट यू इफ यू सी, यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था एट द लेवल ऑफ 2513, एंड ये स्टॉक सीधा नीचे गया है टिल 2175, एंड फिर यहाँ पे आके वापस एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ एट द प्राइस ऑफ 2225, जो सीधा ऊपर तक व्हाट वी हैव सीन इज दिस स्टॉक इज ट्रेडेड टिल 3200। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ डेली सुपर टेन सिग्नल की बेसिस तो आपको एक 50% राइज मिला है, राइट। देन अगेन फिर एक सेल सिग्नल आया विच वाज नॉट क्वाइट दैट एविडेंट, एंड फिर वापस से कल स्टॉक के अंदर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर ट्रेंड। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि सुपर ट्रेंड स्कैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू कैच ट्रेंड रिवर्सल्स। कि अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल्स कैच कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स के अंदर बुलिश से बेरिश जोन में जा रहा है, या बेरिश से बुलिश जोन में जा रहा है, तो फॉर ऑल दोज पीपल आउट देयर, सुपर ट्रेंड स्कैन्स, पैराबोलिक स्टार्स आर
scans are very good scans for identifying trend reversals. सो बेसिकली अगर आपको सुपर ट्रेंड के थ्रू ट्रेड करना है तो आप कैसे ट्रेड करोगे? एज सुन एज कि जैसे ही एक बाइक सिग्नल आता है तब उसमें बाई ट्रेड लोगे, और ऑब्वियसली यू विल हैव टू कंफर्म विद अदर इंडिकेटर्स एज वेल। एंड अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे कुछ है तो उनसे एडवाइस ले सकते हो कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट जो एक बेसिक मार्केट की जो स्टैंडर्ड फिलोसॉफी है ऑन हाउ टू यूज सुपर ट्रेंड, मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। तो आप लोग को ऐसे कई सारे आप लोग को एग्जाम्पल्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टीवीएस मोटर में आते हैं, तो टीवीएस मोटर का भी मैं 1 ईयर का चार्ट लेता हूँ। तो उसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर सेल सिग्नल आया ही नहीं। हम लोग 2 ईयर चार्ट पे है। सो यस, यहाँ पे कंटिन्यूस बाइक सिग्नल था, फिर एक छोटा सा सेल सिग्नल आया विच वॉज नॉट दैट क्वाइट एविडेंट, फिर एक छोटा बाइक सिग्नल आया, देन अगेन एक छोटा सेल सिग्नल आया, देन एट दिस पॉइंट दैट वाज ऑन 9 Feb 2023, इस स्टॉक के अंदर एक बाइक सिग्नल आया एट द प्राइस ऑफ 1049.80, एंड देन you and then this stock has rallied, this stock has like given such a good breakout, and फिर at the levels of almost after a year इसके अंदर एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, that was at the price of 2146, that is totally giving a 100% return in 1 year। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि you cannot do long term trading based on only on the basis of fundamental insights. You can also find good opportunities on the basis of technical indicators as well if you want to invest for long term perspective overall. It is just that your strategy and your mindset should be very clear to what is your goal and how do you want to achieve it. Then we have weekly super trend, like I said, we have beta scans, we have Ichimoku cloud scans. And like I said, we have tried to cover almost all of the indicators. But still, if you feel if there's any indicator missing on our part, या stock में ऐसा कोई indicator है जो नहीं है, then please reach out to us, or via our social team, via our support team, or via our social media, and we'll surely look into it कि अगर हम लोग उन सारे indicators को भी incorporate कर पाए on our Stockist platform for the benefit of for all of our users. Then we have fundamental scans. Like in the case of technical scans, there are n number of data points in fundamental scans as well. So we have also categorized all those fundamental parameters in different subcategories. Say profitability scans, turnover scans, solvency scans, cash flow, valuation, dividend scans. So let's go with profitability scans. तो जैसे यहाँ पे हाई आरओई स्कैन्स है, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। अगर आप लोग को ये चेक करना है, ये स्कैन्स हम लोग अभी लास्ट लास्ट रिलीज में हम लोग ने लॉन्च किया है, दैट इज हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स और एबिटा इन द लास्ट 10 years, और हाईएस्ट एनुअल फॉर द पीरियड ऑफ क्वार्टरली एंड एनुअल पीरियड्स। सो एग्जांपल अगर मैं ये दिखाऊं, हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years, सो ये वो सारी कंपनीज को फिल्टर करता है which have reported the highest annual net profit in the last 10 years. So for example, अभी तो इन दोनों कंपनीज की हम लोग जियो का एग्जांपल लेते नहीं है क्योंकि तो लास्ट ईयर ही डिलिस्ट हुआ था। लेट्स अंडरस्टैंड एमएमटीसी, और वी कैन अंडरस्टैंड जय बालाजी एज वेल, बट लेट्स अंडरस्टैंड एमएमटीसी। सो एमएमटीसी के अंदर एज वी कैन सी कि एमएमटीसी ने 1562 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया इन दी 2023, एंड उसके पहले उसका जो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था दैट वाज इन 2019, दैट वाज 108 करोड़। सो 2023 के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा कि इस कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया, दैट टू अ स्टेट ऑफ 14.4x जंप। ठीक है। सो अगर आप देखोगे इसके चार्ट पे, अगर आप जाओगे एंड इसको अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखोगे, देन ऑब्वियसली इस स्टॉक ने अपना रिजल्ट रिलीज किया होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, मार्च अप्रैल में पीरियड, एट दिस लेवल ओनली। सो एट दैट टाइम दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज, एंड देन यू कैन सी that this stock made a high of 94 rupees within say 7 to 8 months of द रिपोर्टिंग। सो अगर मार्केट में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, देन इवेंचुअली इफ दैट कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वो फंडामेंटली ग्रो करी है, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करी है, देन मार्केट विल रेस्पेक्ट दोस कंपनीज एंड मार्केट विल गिव वैल्यूएशन टू दोस कंपनीज। तो यू कैन सी इट वेरी वेल कि यहाँ पे कैसे ये स्टॉक 30 रुपीज से 90 रुपीज गया, विच इज अ क्लियर कट 300% रिटर्न, राइट। तो ऐसे करके भी अगर आप लोग फंडामेंटल इन्वेस्टर, देन यू कैन फाइंड आउट गुड स्टॉक्स कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अपने लास्ट 10 years में अभी अपना हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे, दैट इज हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं या हाईएस्ट एबिटा रिपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव आल्सो हाईएस्ट सेल्स कैंस।
फिर आप आगे चेक कर सकते हो हाई एबिटा मार्जिन, कंसिस्टेंटली हाई एबिटा मार्जिन एंड ऑल अदर फंडामेंटल स्कैन्स। देन वी हैव टर्नओवर स्कैन्स, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स रिलेटेड स्कैन्स हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको सेल्स रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को स्कैन चाहिए, देन यू कैन फाइंड इट टर्नओवर स्कैन्स। देन वी हैव सॉल्वेंसी स्कैन्स। इसके अंदर हम लोग ने ये कवरेज किया है कि जो स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, उनका सॉल्वेंसी लेवल क्या है, कि क्या उनका सॉल्वेंसी मतलब उनकी जो डेट स्ट्रक्चर है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि किसी कंपनी का डेट है ही नहीं, या लो डेट है, या बहुत हाई डेट है। तो हम लोग ने वो सबको स्कैन किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंसी स्कैन्स। देन वी हैव कैश फ्लो स्कैन्स, वी हैव वैल्यूएशन स्कैन्स। अगर आपको ये फिल्टर आउट करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं या लो पी पे ट्रेड कर रहे हैं, या विच आर दो स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव देयर इंडस्ट्री पी या ट्रेडिंग बिलो देयर इंडस्ट्री पी, या पेग रेशियो, लो पेग रेशियो। तो ऐसे कई सारे आपको यहाँ पे फंडामेंटल स्कैन्स मिलेंगे। Then we have dividend scans. There are many traders out there or many investors out there who only invest in dividend paying companies, and it is still considered one of the most safest practices to trade in the to invest in the stock market. तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो सबसे कंसिस्टेंटली हर साल डिविडेंड पे कर रही है, या जो सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करती है, कि हर साल वो कितना डिविडेंड अपना अर्निंग का कितना परसेंट डिविडेंड वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो। यू कैन फिल्टर आउट दैट। देन वी हैव शेयर होल्डिंग स्कैन, जिसके अंदर आप शेयर होल्डिंग के डेटा को फिल्टर कर सकते हो कि प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, एफ आई डी आईज, कौन सी स्टॉक्स के अंदर एफ आईज अपना होल्डिंग बढ़ा रही है, कम कर रही है, और विच आर दो स्टॉक्स इन विच एम एफ और इंस्टीट्यूशन आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग और डिक्रीजिंग देयर होल्डिंग। So you can eventually filter out those kind of stocks from shareholding scans. Then we have promoter holding pledge, corporate activity scans and all. Then we have futures and option scans, strike price option scans. These are all related to the open interest scans. कि आपको open interest के data के basis पे it will tell you कि what is the trend going on in those respective scans, in those respective stocks. Then we have strike price option scans. आप ईओडी लेवल पे आप ये चेक कर सकते हो कि इंडेक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर ऐसे कौन से स्ट्राइक्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉल में ओवाई बढ़ा है, या कॉल ओवाई डिक्रीज हुआ है, या पुट में ओवाई बढ़ा है, पुट में ओवाई डिक्रीज हुआ है, एंड इवेंचुअली यू कैन प्लान आउट योर ट्रेड्स। Then we have candlestick scans. Let me all tell you, candlestick scans are very important because candlestick की जो एक एक कैंडलस्टिक बनती है ना चार्ट पे, इट इज अ क्लियर कट सिग्नल कि वो क्या पैटर्न डिनोट कर रही है। फॉर एग्जांपल व्हाइट मारुगुजू, व्हाइट मारुगुजू इज अ क्लियर कट लॉन्ग ग्रीन कैंडल। जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, इसके अंदर कल एक क्लियर कट एक व्हाइट मारुगुजू बना, एंड आज स्टॉक के अंदर एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी था, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एंड दिस स्टॉक इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे करके हम लोग के कई सारे ऐसे बुलिश स्कैन्स है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें आप बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन या बुलिश रिवर्सल, बेयरिश रिवर्सल स्कैन्स के बेसिस पे आप लोग स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टॉक scans. So let's do a quick Q&A session, and then we'll move further and how to making customized combination scans. मुकेश जी, मैं अभी आई हैव टेकन योर फीडबैक, मैं थोड़ा सा अभी स्लो जाऊंगा आपसे। प्रतीक सर, आप गाड़ा जी, यस आई एम शेयरिंग दी पीडीएफ्स। आई हैव शेयर्ड दी फीडबैक, आई हैव शेयर्ड दी पीडीएफ। ये पीडीएफ आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, मैं पीडीएफ अभी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, देन इवेंचुअली विल प्रोसीड फर्दर। रिंकू बघेल जी, आपको सेशन का रिकॉर्डिंग या तो अगर आप सोशल मेंबर है देन आपको सोशल में मिल जाएगा, और एल्स यू कैन रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम एंड दे विल गाइड यू ऑन द सेम। और राजेंद्र सर, ये जो एसआरएस और ईआरएस है, इट इज स्टैटिक रेटिव स्ट्रेंथ एंड अडेप्टिव रेटिव स्ट्रेंथ। ये दोनों स्कैन भी एक स्पेसिफिक पीरियड्स के बेसिस पे बने हुए हैं, एंड उस स्पेसिफिक पीरियड में जब भी कोई इवेंट चेंज होता है, ऐसा कुछ होता है, कुछ मेजर इवेंट होता है, तो उसके बेसिस पे उन स्टॉक्स का जो स्ट्रेंथ है विद विद देयर बेंचमार्क इंडेक्सेस वो कंपेयर किया जाता है। क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन, जो मैंने राजीव जी, जो मैंने आप लोग को जोन का बोला कि किसी भी स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई लेवल है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, तो उसका जो जोन हो गया दैट इज 85 to 100। तो अगर कोई भी स्टॉक 85 से 100 के बीच में ट्रेड कर रहा है, उसी के बीच में क्लोजिंग कर रहा है, तो वो स्टॉक उसके अंदर आते हैं। मुकेश जी, 55 डेज इज नियरली 2 मंथ्स नहीं, 50 वी आर टॉकिंग अबाउट 55 ट्रेडिंग डेज। मैं 55 कैलेंडर डेज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 55 ट्रेडिंग डेज का बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर आनंद जी, यस आप लोग को रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। आप लोग अगर सोशल मेंबर्स है देन आप लोग को सोशल पे आप लोग रिकॉर्डिंग सर्च करोगे एंड आपको मिल जाएगा, आप लोग को हर स्मार्ट सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा।
एंड आप लोग नहीं है देन प्लीज रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम एंड दे विल गाइड यू ऑन हाउ यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स। सुजिन जी यस, ईएमए क्रॉसओवर्स भी है, जैसे मैंने एसएमए क्रॉसओवर्स बोला वो सारे के सारे ईएमए में भी अवेलेबल है। और झुमा जी, जो टाइम फ्रेम फॉर गोल्डन क्रॉसओवर इज 50 एंड 100 एसएमए, और 50 और 100 एसएमए और ईएमए, और 50 और 200 एसएमए एंड ईएमए। मेनी पीपल कंसिडर 100, मेनी पीपल कंसिडर 200। वीजी इज सुपर ट्रेंड फॉर लार्ज एंड मिड कैप ओनली, नॉट फॉर स्मॉल कैप। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली यू कैन लाइक इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टॉक्स, बट आप चाहे तो आप उसमें फिल्टर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और जो इंडिविजुअल स्कैन को रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, जैसे आप लोगों ने बोलिंगर बैंड या RS50 का अगर आपको भी इंडिविजुअल क्वेरी है, देन प्लीज डू रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम एंड देन विल लेट यू नो एंड विल गाइड यू ऑन द सेम। VG, yes, we have EPS scans available. You will get that EPS scans in the profitability scans. एकता जी, इस पीडीएफ के अंदर विवेक सर का सारा उनका पर्सनल कॉम्बिनेशन स्कैन्स अवेलेबल है। आप उसको चेक करके यूज कर सकते हो। एंड अभी हम लोग उसी जो नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, उसी के अंदर मैं उसमें से एक पीडीएफ कॉम्बिनेशन स्कैन बना के आप लोग को गाइड भी करूंगा। और रणदीप जी, आई एम एक्सट्रीमली, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग सो फास्ट। अब मैं अभी अपना और आई विल कंट्रोल माई स्पीड एंड आई विल गो इट स्लो, आई विल गो स्लो। और रश्मि नारायण जी, गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो है 50 एंड 200 और 50 एंड 100। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टुवर्ड माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। सो मैं आप लोग को दिखा दूं, ये जैसे जो ये वो पीडीएफ है जो मैंने शेयर किया, दिस इज द पीडीएफ व्हिच आई हैव शेयर्ड इन द चैट्स। सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ विवेक सर्स कॉम्बिनेशन स्कैन्स। यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्कैन्स है, फीपा है, कैपेक्स केपेक्स प्लस अर्निंग प्लस प्राइस एक्शन है, देन वी हैव पावर ऑफ RS स्टॉक्स। ये एक RS के बेसिस पे कॉम्बिनेशन स्कैन है, RS55 के बेसिस पे। देन वी हैव टाइगर स्टॉक्स एज वेल, वी हैव ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। So these are five kind of indicators. So let's understand and create one of the combination scans कि आप लोगों को भी एक grip हो जाए. So we'll be creating financial improvement and price action, FIPA. So आप लोग को माई स्टॉकेज में जाना है, एंड माई स्टॉकेज में जाके आप लोग को माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन्स पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम लोग फीफा लिखेंगे, एंड हम लोग फिर अब फीफा का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे। सो यहाँ पे ये स्कैन कॉम्बिनेशन स्कैन ऐड हो गया। सो व्हाट विल डू इज कि अब हम लोग एक एक करके इन सारे स्कैन्स को ऐड करेंगे। सो सबसे पहला स्कैन है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। सो हम लोग यहाँ पे ऐड स्कैन पे क्लिक करेंगे, विल क्लिक ऑन दी ऐड स्कैन बटन, एंड विल इवेंचुअली फाइंड आउट। अगर आप लोगों को पता है वो ऑलरेडी स्कैन कहाँ पे है, देन यू कैन गो इवेंचुअली ओवर देयर एंड यू कैन फाइंड आउट व्हिच आर दोस कॉन्स। सो यहाँ पे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन पे व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट click on the star mark and this scan will get added. Then what are the further scans? Improved return on equity, improved return on capital employed. So यहाँ पे हम लोग ऐसे सर्च करके ऐड कर सकते हैं, improved return on equity, improved return on capital employed. Then we have quarterly net profit growth year on year, quarterly EBITDA growth year on year. Quarterly net profit growth year on year we have added. We have added quarterly EBITDA growth year on year. Then next we have a high increase in quarterly sales year on year. So here it is high increase in quarterly sales year on year. And then we have consistent cash from operations. Consistent cash from operations. So we have added all the 7 scans. So before proceeding further to the output, we first need to understand ki why these 7 scans were added for this combination scan. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बनाओ, सो आप लोग का जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है
कि आपको इंट्राडे के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है, या आपको किस टाइप के स्टॉक्स फिल्टर करने हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप फिर स्कैन्स ऐड करोगे तो वो आपको ज्यादा रेलिवेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंट्राडे स्कैन्स, एंड अगर आप क्या बोलते हैं 2 ईयर ब्रेकआउट या 5 ईयर ब्रेकआउट के स्कैन्स को अगर आप फिल्टर आउट करोगे, या अगर आप स्विंग के स्टॉक्स को स्विंग के स्कैन्स को फिल्टर आउट करोगे, देन आपके जो आउटपुट आएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेडिंग एंड स्विंग पोजिशंस, बट आप उसमें ट्रेड्स लोगे इंट्राडे में, सो हो सकता है वो आपको मिसलीड करे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्टिव एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें स्कैन्स ऐड करो। तो फॉर एग्जांपल फीफा के अंदर विवेक सर ने 7 स्कैन क्यों ऐड किया? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइस एक्शन कंपोनेंट पे। सो एज वी ऑल नो एंड वी से कि अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन में ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर इट्स 52 वीक हाई लेवल्स, सो इट इज वेरी evident and clear that stock is in a strong price action zone, that stock is in a strong momentum zone, bullish zone में। so which means कि उसका जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस मोमेंटम, इट इज स्ट्रॉन्ग, इसीलिए वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर वो अपने 52 वीक लो जोन में ट्रेड कर रहा होता, तो वी वुडंट हैव सेड कि वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जोन में ऑन अ बुलिश साइड, बट ऑन अ बेयरिश साइड, ठीक है। तो फ्रॉम इंडिविजुअल दिस कैन ओनली वी कैन फिल्टर आउट दी स्टॉक्स विद प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। देन लेट्स कम टू फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। सो अगर हम लोग को इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो फॉर दैट विल हैव टू सम चेक ऑन सम पैरामीटर्स। तो सबसे पहले जो दो पैरामीटर्स है दैट इज इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एज यू, अगर आप लोग को पता है, इवन इफ नॉट तो मैं बता देता हूँ, आरओई हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, कि कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न बना के दे रही है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी आर फिल्टरिंग इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी। सेम वे में आरओसी इज कि कंपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस के अंदर, उसमें से जो रिटर्न जनरेट करिए कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट है कि नहीं। सो अगर इन दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट है, विच इज अ क्लियर एंड अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि ये जो सारी कंपनीज है ये अच्छा ऑपरेशंस कर रही है, एंड ये अपने शेयर होल्डर्स को एंड अपने कैपिटल पे ज्यादा रिटर्न बना पा रही है, एंड इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, इसलिए इंप्रूव रिटर्न ऑन आरओई एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आते हैं हम लोग कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशंस पे। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये टर्म्स की बॉटम लाइन नंबर, टॉप लाइन नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का टॉप लाइन विच इज सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज द मिडिल लाइन एबिटा, एंड बॉटम लाइन विच इज द नेट प्रॉफिट, अगर इन इन तीनों पैरामीटर के अंदर अगर ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, तो वी कंसिडर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव सिग्नल कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी ग्रो कर रही है। यू विल सी मेनी टाइम कि कंपनी का सेल्स ग्रो किया बट नेट प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं किया, नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं किया, या सेल्स ग्रो किया बट एबिटा ग्रो नहीं किया, या नेट प्रॉफिट एंड एबिटा ग्रो किया, प्रॉफिट्स ग्रो किया बट सेल्स ग्रो नहीं किया। तो क्या होता है कि फिर उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं कि आर दी इज द रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी स्ट्रॉन्ग, या कंपनीज को छुपा तो नहीं है, या इस कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है जो उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो टू हिंडर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस व्हाट वी हैव डन कि हम लोग ने इस तीनों स्कैन को साथ में लिया, ताकि हम लोग को कंफर्मेशन रहे कि हाँ ये जो स्टॉक्स इसको फिल्टर करेगी, दी स्टॉक्स आर एक्चुअली ग्रोइंग एंड इंप्रूविंग इन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड देयर एक्चुअली एंड इट कैन बी एक्चुअली सीन इन देयर नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस में। सो व्हाई दिस, ये उसके लिए है क्योंकि अगर जो कंपनीज ग्रो कर रही है उसको आगे कैश चाहिए और आगे ग्रो करने के लिए, तो अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली कैश जनरेट कर रही है, तभी वो कंपनी उस कैश को आगे जाके यूज कर पाएगी फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और फॉर मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सो इसी 7 पैरामीटर के बेसिस पे वी कैन से जो स्टॉक्स आउटपुट आएंगी, दोज कंपनीज आर फाइनेंशियली इंप्रूविंग with respect to their structure, with respect to their financial performance, with respect to their business activity, and they are also strong in price action. So अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। तो आप लोग पहले स्टॉक्स पे जाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्कैन्स मॉड्यूल। यहाँ पे भी आपको फिल्टर्स के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे यू कैन मोर फिल्टर आउट द डेटा एंड यू कैन मोर रिड्यूस द डेटा ऑन योर चॉइस, एंड आप उसमें टेस्टिंग कर सकते हो अलग अलग तरीके से। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द आउटपुट, एंड लाइक आई सेड कॉम्बिनेशन स्कैन में इस बैक टेस्टिंग का सबसे ज्यादा वैल्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया फॉर इंट्राडे पर्पस, ठीक है, कि आप लोग को उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जो कल इंट्राडे में एक अच्छा मूवमेंट देंगे।
तो आप लोगों ने कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया एंड उसका एक आउटपुट आया, बट आपको नहीं पता कि कल कैसा परफॉर्म करेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप पिछले दिनों में जाके चेक कर सकते हो, या आप में जाके चेक कर सकते हो कि 6 में जो स्टॉक्स आउट 6 मई को जो स्टॉक्स आए थे इन दिस रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन स्कैन ऑफ योर्स फॉर इंट्राडे आउटपुट, वो 7 मई को कैसा परफॉर्म किए। फिर आप 7 मई में जाके चेक कर सकते हो कि 8 मई को कैसा परफॉर्म किए। आप 9 मई में जाके चेक कर सकते हो कि 10 मई को कैसा परफॉर्म किए। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जा रहे हैं जो नेक्स्ट डे इंट्राडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देन उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल बूस्ट अप। इट विल हेल्प यू इन नोइंग कि आपने जो कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया है इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन स्कैन, एंड उसके जो आउटपुट आ रहा है यू कैन इवेंचुअली टेक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ दोज आउटपुट। तो आपका कन्विक्शन भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड जस्ट बिकॉज आपने स्टॉक्स पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखे हैं, सो इट विल सेव योर टाइम ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट आवर्स। तो आपको स्टॉक पिकिंग में आपको टाइम नहीं जाएगा, आपका स्टॉक पहले से सिलेक्टेड रहेगा, यू जस्ट नीड टू टेक योर ट्रेड्स इन द मार्केट। ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, आप लोग यहाँ पे परफेक्ट मैच दिख रहा होगा। सो व्हाट इज दिस परफेक्ट मैच? परफेक्ट मैच मींस कि हम लोग जितना भी कॉम्बिनेशन, हम लोग ने जितना भी इंडिविजुअल स्कैन यहाँ पे ऐड किया है, इन दिस एग्जांपल इट इज 7। सो इफ एनी स्टॉक फुलफिल्स एंड मैचेस ऑल ऑफ दी 7 स्कैन्स, देन इट इज अ परफेक्ट मैच। ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ सारे स्टॉक्स होते हैं जो एक या दो स्कैन मीट नहीं कर पाते, बट दे आर इवेंचुअली वेरी गुड। तो उसके लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट देयर कॉन्सेप्ट रख के रखा है, विच मीन्स कि अगर कोई भी स्टॉक 75% ऑफ द स्कैन्स को क्वालिफाई करता है तब वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हम लोग के जो अच्छे स्टॉक्स है वो मिस आउट नहीं होंगे। वी कैन ऑल्सो चेक दी ऑलमोस्ट देयर सेक्शन, इसमें भी कई बार अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकल के आते हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी कॉम्बिनेशन स्कैन, कि आपको कैसे कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है, कैसे बना सकते हो। सी दे आर 450 प्लस स्कैन, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ देम कि आप एक एक स्कैन को जाके चेक करो, पढ़ो, समझो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुछ कुछ स्कैन्स को रीड करना चालू करो, कुछ कुछ स्कैन्स को ट्रैक करना चालू करो, एंड आप लोग समझो कि हाँ इस स्कैन्स के साथ इस स्कैन्स का रिलेशन ज्यादा बेटर हो सकता है। लाइक आई सेड कि आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, एंड देन आपका वंस योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि आपको मंथली लेवल पे स्कैन्स चाहिए, इंट्राडे पे स्कैन्स चाहिए, या यू नीड ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड आपको खाली फंडामेंटल स्कैन्स की बेसिस पे चूज करना है, या यू वांट टू डू अ कॉम्बिनेशन कि आपको फंडामेंटल एंड टेक्नो स्कैन्स को टेक्निकल स्कैन्स को कंबाइन करना है एंड उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, देन इवेंचुअली यू कैन चूज दोज काइंड ऑफ स्कैन्स एंड मेक योर कॉम्बिनेशन स्कैन। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि आप टोटल 20 इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो, और हर एक कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर आप 10 इंडिविजुअल स्कैन्स को ऐड कर सकते हो। राइट। तो आप लोग 10 इंडिविजुअल स्कैन्स को ऐड कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर द कॉम्बिनेशन स्कैन, सो लेट्स डू अ क्विक Q&A सेशन अगेन। ओके, मैं पीडीएफ वापस से शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। शेयर दी पीडीएफ, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप लोग सेव कर लो। हर्षिक जी, एकता जी, आई हैव शेयर दी पीडीएफ। ओके मुकेश जी, आई टेक योर फीडबैक, मैं और कोशिश करूंगा मैं और स्लो जाऊं। KBS Rao ji, FIPA scan you can say it is for positional trading. You can also consider it for long term purpose as well. VG, no, currently we do not have cup and handle patterns. We have taken your request. We'll surely look into it. Ekta ji, I have shared the PDF again. Please, you can download again. महेश पाटिल जी, ARS SRS स्कैन का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल, आप लोगों को स्कैन्स के अंदर जाना है, प्राइस स्कैन्स, ARS एंड SRS। सो इसके अंदर क्या होता है कि अगर बोथ SRS एंड ARS आर अबव जीरो,
तो उसका एक अलग मतलब है कि हाँ इन सारे स्टॉक्स का जो रेटिव स्ट्रेंथ है, ARS का जो स्ट्रेंथ है वो अबव जीरो ट्रेड कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू निफ्टी 50। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे जय बालाजी का 6.06 है, एसआरएस 0.43 है, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट है ऑलरेडी, राइट। तो एसआरएस और एआरएस के साथ आपको कैसे ट्रेड करना है, यू कैन चेक आउट ओवर हेयर कि आपको कैसे ट्रेड करना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड इसके ऊपर हम लोग की वीडियोस भी है, तो प्लीज जाके आप लोग वो चीज चेक कर सकते हो। मैं एक बार वापिस से दिखा देता हूँ कि आप लोग को स्कैन्स कैसे ऐड करना है। आप लोग को माई स्टॉकेज में जाना है। माई स्टॉकेज में जाके आप लोग को माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाना है। देन यहाँ पे जो हम लोग ऑलरेडी कॉम्बिनेशन स्कैन एडेड, आप लोग को पहले एक नया कॉम्बिनेशन स्कैन क्रिएट करना है। देन आप लोग को स्कैन सेक्शन में आना है। यहाँ पे आप लोग को इस ऐड स्कैन के बटन पे क्लिक करके आप लोग को इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू यहाँ पे सारे के सारे 450 प्लस लिस्ट ऑफ स्कैन है, इसके थ्रू आप कोई भी स्कैन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टार मार्क पे क्लिक करोगे तो वो सारे स्कैन ऐड हो जाएंगे, एंड अगर आपको किसी स्कैन को हटाना है देन आप यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दो, तो वो स्कैन हट जाएगा। और आपको किसी नए स्कैन को ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जो जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने बैक टेस्टिंग किया एंड आप लोग को लगा कि नहीं कुछ स्कैन की बेसिस से आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्कैन में जाके वापस उस स्कैन को डिलीट कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, एंड फिर किसी और स्कैन को ऐड करके उसका आउटपुट चेक कर सकते हो। यू कैन रिपीट द सेम प्रोसेस जब तक आपको आपका डिजायर्ड कॉम्बिनेशन स्कैन नहीं मिल जाता। और प्रमोद जी, मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग पे मैं अभी कॉम्बिनेशन स्कैन बना नहीं पाऊंगा। अगर आपको ऐसा कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप सपोर्ट टीम को रीच आउट करिए, विल लुक इनटू इट। महेश जी, मैंने अभी एक एआरएस एसआरएस स्कैन का एग्जांपल दिया था। और आदित्य जी, परफेक्ट मैच और ऑलमोस्ट जाएगा, मैं वापस बता दूं। अगर मैंने अपने कॉम्बिनेशन स्कैन में 10 स्कैन्स ऐड किए हैं, ठीक है, सो अगर कोई भी स्टॉक 10 के 10 स्कैन्स को क्वालिफाई करता है देन इट इज अ परफेक्ट मैच। अगर कोई भी स्टॉक उस 10 में से मोर देन 75%, तो दैट विल बी 8 स्कैन्स। अगर 8 स्कैन्स एंड अबव को क्वालिफाई करता है देन इट इज ऑलमोस्ट देयर। VG, how to catch stocks before run? I like I said, all stocks entering into all-time high zone, 52-week high zone are very good scans for finding out stocks that before run. Jyotirmay ji, I have already shared the PDF. Thank you, Rajiv sir, for sharing the PDF again. So let's proceed further to understand trending stocks. So this is the trending stock section and let me tell you this is the most trending section, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का जो मूवमेंट है जो ट्रैफिक है दैट इज एक्सट्रीमली ह्यूज, बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम 9:15 टू 3:30। एंड यहाँ पे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंट्राडे में, स्विंग पोजीशन में, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग वो समझेंगे। तो मार्केट स्टार्ट्स एट 9:15, लेकिन 9 o'clock पे प्री मार्केट चालू हो जाता है, एंड 9 to 9:07 में प्री मार्केट प्राइसेस डिसाइड होती है, एंड 9:08 AM पे ही प्री मार्केट डिसाइड होके फिक्स हो जाती है। सो फ्रॉम अगर आप इस सेक्शन में 9:08 पे आपको आना है, एंड यू विल सी कि 9:08 पे जो प्री मार्केट की जो प्राइसेस फिक्स हुई है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। एंड आप उसी टाइम पे ही आप फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक्स को फिल्टर करना है, मेजर स्टॉक्स को, FNO स्टॉक्स को, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, तो उसके बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। सो एट 9:08 AM itself यू विल गेट टू नो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट के पहले गेनर साइड पे है या लूजर साइड पे है, ठीक है। तो आपका पहला फिल्ट्रेशन वहां पे हो गया। देन फ्रॉम 9:15 itself every minute, I'm telling you, every minute from 9:15 itself till 3:30, this section gets updated every minute. आपको बस यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है, यू विल इवेंचुअली सी कि जो टॉप गेनर्स है बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव फिल्टर एडेड। अगर आपको कोई फिल्टर नहीं चाहिए, आपको टॉप देखना है, तो आप जैसे देख सकते हो बॉम्बे साइकिल 20%, ये सारी कंपनी सारी की सारी 20% थी आज। तो आपको जिस फिल्टर के स्टॉक्स आपको देखने हैं, बेस्ड ऑन दैट फिल्टर उन स्टॉक्स के अंदर कौन कौन से गेनर्स है, कौन कौन से लूजर्स है ड्यूरिंग इंट्राडे आवर्स, एंड उनके अंदर क्या चेंज हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, वो आपको इसी सेक्शन के अंदर दिख जाएगा, राइट इन दिस सेक्शन फ्रॉम 9:15 itself till 9 till 3:30, ठीक है।
आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा मोमेंटम हाई है, मार्केट काफी ज्यादा हाई है, देन ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल कि लिस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा, देन यू कैन डाउनलोड दी लिस्ट एज वेल। आप चाहो आप इसमें फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स चाहिए या सिर्फ निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स चाहिए। तो आपको निफ्टी फिफ्टी स्टॉक में आपको दिखेगा सिर्फ तीन ऐसे स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी में जो आज 2% के ऊपर भागे हुए थे, राइट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 2% का लॉजिक लगा के रखा है, क्योंकि तभी एक अच्छे स्टॉक से मोमेंटम हम लोग को वी कैन आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वापस से मेजर स्टॉक से फिल्टर लगा देते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द प्राइस मूवर सेक्शन। Now we have volume shockers section, which is very important for intraday traders out there to understand and to identify stocks which have high spikes in volume. So let's me take the example of ITI Limited. आप चेक कर सकते हो ITI Limited का जो आज का वॉल्यूम है दैट इज 3 करोड़ 72 लाख 4,637, एंड इसका जो एवरेज वॉल्यूम है, दिस एवरेज वॉल्यूम इज फॉर प्रीवियस 5 डेज, 5 ट्रेडिंग डेज, दैट इज 10,51,745। सो एज सून एज आईटीआई स्टॉक के अंदर उसका जो आज का वॉल्यूम है, टूडेज वॉल्यूम वुड हैव क्रॉस अबव 10,57,746, अगर एक शेयर का भी वॉल्यूम इसके ऊपर आएगा ना, तो ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे इस सेक्शन में आने लग जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर इटसेल्फ। तो अगर आप कंटिन्यूअसली इस सेक्शन को आप चेक करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि विच आर दो स्टॉक्स जिसके अंदर वॉल्यूम का स्पाइक बहुत ज्यादा हाई है। एज यू कैन सी ऑब्वियसली इस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम चालू हुआ होगा वो जीरो से चालू हुआ होगा। एवरी डे हर स्टॉक का हर दिन फॉर एवरी स्टॉक उसका जो वॉल्यूम होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो यू कैन सी कि आईटीआई के अंदर 0 से 3 करोड़ 72 लाख तक गया है, तभी ये स्टॉक 9.8% भागा हुआ है। तो उसमें हो सकता है कि इसका जो 10 10 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, ये हो सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आज और ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकंड आज ही कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसके बाद अगर आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो, देन ऑब्वियसली यू माइट फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द इंट्राडे इटसेल्फ टू गेट अ होल्ड ऑफ 2 to 3% और 4%। क्योंकि आप अगर ये स्पाइक देखोगे इट इज अ 35.4x स्पाइक। तो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे आज स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हुई है, एंड इफ यू कैन इवेंचुअली सी द रिजल्ट कि ये स्टॉक आज 10% भागा हुआ है। तो वॉल्यूम शॉकर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर आइडेंटिफाइंग हाई मोमेंटम स्टॉक्स ड्यूरिंग इंट्राडे। ठीक है, नाउ इट कम्स टू 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। सो मैं जो आप लोगों को 52 वीक ब्रेकआउट एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का मैं आप लोगों को जो स्कैन बता रहा था, सबसे बेस्ट तो यही होगा ना कि अगर हम लोग को इंट्राडे के अंदर ही पता चल जाए एट दैट वेरी मोमेंट कि किन स्टॉक्स के अंदर एक 52 वीक हाई या लो ब्रेकआउट आया है, या किन स्टॉक्स के अंदर ऑल टाइम हाई या लो ब्रेकआउट आया है। फॉर एग्जाम्पल, हिटाची इंडिया का नया ऑल टाइम हाई इज 10,849.95। इसका ये मतलब है इस सेक्शन के अंदर एज सुन एज एनी स्टॉक अगर आज अपने इंट्राडे के अंदर अगर आज वो स्टॉक, इफ दैट स्टॉक मेक्स अ न्यू 52 वीक हाई और अ न्यू ऑल टाइम हाई, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई कल था 1,000 रुपीज, एंड उस स्टॉक ने आज 1,001 जैसे ही बनाया, एंड जैसे ही वो प्राइसेस यहाँ पे आई, एट दैट वेरी मोमेंट दैट स्टॉक विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर, विच मीन्स कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको कहीं और जाने का दरकार नहीं है, यू विल इवेंचुअली फाइंड दो स्टॉक्स ओवर हियर, राइट। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो नॉर्मली क्या होता है, दो दो परसेप्शन रहता है, या दैट स्टॉक विल कंटिन्यू इट्स मोमेंटम एंड इट विल कंटिन्यू टू मेकिंग मोर हायर हाइज, और दैट स्टॉक विल सी अ प्रॉफिट करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग। बट इवेंचुअली जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देता है या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है, देन ड्यूरिंग दैट इंट्राडे इटसेल्फ वी हैव सीन कि अगर मार्केट्स का मोमेंटम अच्छा है, देन दो स्टॉक्स कंटिन्यू टू मेक मोर हायर हाइज। तो आप इंट्राडे के अंदर उन सारे स्टॉक्स को पकड़ के आप अपना एक इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो, एंड इवेंचुअली यू कैन प्लान आउट ट्रेड्स। हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा स्टॉक दिखा जिसके अंदर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, एंड इफ यू फील कि इसके अंदर मोमेंटम और कंटिन्यूड होगा, देन यू कैन मेक स्विंग ट्रेडिंग इन दैट, और यू कैन मेक स्विंग पोजिशन इन दोज काउंटर्स। सो ये जो दोनों सेक्शन है दैट इज 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो, इस दोनों सेक्शन के थ्रू आप इंट्राडे के अंदर ही आप स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो, स्टॉक्स पिक कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर 52 वीक हाई ब्रेकआउट आ रहा है या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ रहा है। और या अगर आप लोग शॉर्ट करके खेलते हो तो आप लोग 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम 52 वीक लो एंड ऑल टाइम लो की भी स्टॉक्स को ट्रैक रख सकते हो। जैसे ऑब्वियसली अभी के मार्केट्स में आपको बहुत ऐसे ना के बराबर स्टॉक्स मिलेंगे जो अपना 52 वीक लो या ऑल टाइम लो तोड़ रहे हैं, एटलीस्ट इन दी निफ्टी 500 स्टॉक्स या मेजर स्टॉक्स, राइट। तो ये हो गया ये दोनों सेक्शन। आप यहाँ पे भी फिल्टर आउट कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बोला।
क्योंकि ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि मार्केट जब बहुत हाई मोमेंटम में रहता है तो स्टॉक्स की लिस्ट काफी ज्यादा आ जाती है। देन टू फिल्टर आउट द लिस्ट, एंड आपको लिस्ट को छोटा करने के लिए आप अपने रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट कर सकते हो। दिस गोज फॉर बोथ दी सेक्शंस। एंड देन वी हैव द मोस्ट विजिटेड सेक्शन। ये वो सेक्शन है और ये लिस्ट ऑफ वो स्टॉक्स है जिनको सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट इंट्राडे पीरियड। तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स है जो मोमेंटम में है या न्यूज में है या व्हाट्स एवर इट इट इज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि इनिशियली कि हाउ वी कैन गेट benefit from using scans, my combination scans and trending stocks all in sync. So from years of research and हम लोग ने जो हम लोग के पास्ट यूजर से समझा है, जो फीडबैक लिया है, एंड व्हाट वी फील की इज गुड फॉर पीपल आउट देयर, कि आप मार्केट में देयर 5,000 प्लस स्टॉक्स, so you cannot trade and you cannot analyze those 5,000 stocks during the intraday market hours. ठीक है। so what is the best possible scenario is कि आपको जो आपका एनालिसिस करना है वो आपको एक दिन पहले करना है, दैट इज आपको पिछले दिन मार्केट के पहले रात को करना है, उस दिन सुबह पहले करना है। तो फॉर व्हाट यू कैन डू, you can come to the stockage application after the EOD is done, after you receive your push notification that EOD data has been processed, then you need to visit your विजिट द स्कैन सेक्शन। वहां पे जाके आपको जो आपके फेवरेट स्कैन्स है, जो स्कैन्स को आप डेली ट्रैक रखते हो, आपको उन सारे स्टॉक्स स्कैन्स में जाना है। एंड देन उन स्कैन्स में जो आउटपुट आ रहा है उसमें और फर्दर फिल्टर लगा के या फर्दर टेस्टिंग करके आपको उसके अंदर से स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। देन यू कैन गो टू योर माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। अगर आप लोग का कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना हुआ है देन उसके बेसिस पे आप लोग स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स जो आपको लग रहे हैं कि नेक्स्ट डे आने वाले दिनों में बेटर परफॉर्म करेंगे, एंड यू कैन मेक आउट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम ओवर देयर। ऑल्सो यू कैन लाइक डू फर्दर एनालिसिस इन माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। उसके अंदर आप स्कैन्स को ट्वीक कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ऐड डिलीट कर सकते हो, या उसके अंदर और फर्दर फिल्टर ऐड कर सकते हो। एंड इवेंचुअली यू कैन find and filter out some 5 to 10 stocks beforehand, only before the market starts. तो आपको कल नेक्स्ट डे आपको मार्केट में क्या करना है, एज सुन एज 9-8 पे जब प्री मार्केट प्राइसेस आ जाती है तो आपको ये देखना है कि प्री मार्केट के अंदर आपने जो 5 to 10 स्टॉक्स का लिस्ट बनाया था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। वो क्या गेनर साइड पे है, क्या क्या लूजर साइड पे है। इफ यू फाइंड एनी ऑफ दो स्टॉक्स इन द गेनर साइड और ऑन द लूजर साइड, देन ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव प्री आइडेंटिफाइड दो स्टॉक्स फॉर टुडे सेशन। तो एज सुन एज मार्केट स्टार्ट्स 9:15 पे आपको उसी 5-10 स्टॉक्स को ट्रैक रखना है, एंड उसके अंदर जिस भी स्टॉक में आपको लगे कि मोमेंटम कंटिन्यूड हो रहा है या मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, उन स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। तो इससे इट विल हेल्प यू इन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, योर कॉन्फिडेंस विल बी वेरी हाई बिकॉज यू हैव प्री आइडेंटिफाइड दो स्टॉक्स। आपको मार्केट के बीच में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का टेंशन नहीं है। योर टाइम विल बी सेव्ड, you will have more time to execute your trades and to plan your trades rather than finding out stocks. थर्ड, आप अगर पहले से किसी स्टॉक पे एनालिसिस करके रखोगे कि इस स्टॉक का ये लेवल्स है, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे सकता है या देगा, या इतना ऊपर तक जा सकता है, नीचे का ये सपोर्ट है, ये अगर आप लोग पहले ही आइडेंटिफाई करके नोट करके रख लोगे, देन इन द नेक्स्ट डे आप लोग उतना पैनिक नहीं करोगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वी कीप आवरसेल्व्स काम, तो हम लोग का जो पोजीशन होता है वो ज्यादा बेटर होता है इन द मार्केट, राइट। तो दिस वाज हाउ आप लोग स्कैन्स को, माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स को एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स को इन सिंक यूज करके आप लोग अपना एनालिसिस को फर्दर बेटर कर सकते हो। आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आप लोग ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज को बेटर कर सकते हो, and आप लोग इवेंचुअली देखोगे आप लोग का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हो रहा है, इवेंचुअली इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग प्रोसेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप लोग का जो इवेंचुअली एंट्री एग्जिट रिवॉर्ड्स, एंट्री एग्जिट पोजीशंस हो रहा है, एंड आप लोग के जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो डे बाय डे बेटर होते रहेंगे irrespective of the market. So this was all. So let's do the last Q&A session again. अमिताभ जी, और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बेसिस पे आप स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि यू विल फाइंड आउट दो स्टॉक्स जिसके जिसके अंदर काफी टाइम से कोई मूवमेंट नहीं था, 4 to 6 मंथ से वो कंसोलिडेट ही करा था, एंड अचानक से उस स्टॉक के अंदर आज एक बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया। तो ऑब्वियसली यू कैन कंसीडर दो स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। या आपके अंदर अगर आपको ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जिसके अंदर कोई न्यूज आया या बहुत एक अच्छा मूव आया एंड इट इज ब्रेकिंग आउट लेवल्स, देन ऑब्वियसली दो स्टॉक्स कैन बी कंसीडर फॉर स्विंग ट्रेड्स। VG, it is not necessary that high volume is only because of results. There are multiple reasons for stocks having high volume for that day. Srikanji, how frequently is it updated? It is updated every minute. You will have to refresh the section
by yourself, and it will get updated every minute. Yes, Taneji, it is updating on a real time basis with a lag of 30 seconds to 1 minute. Sunny ji, in the trending stock section, all the data is updated during intraday itself. Intraday itself, within that minute, all the data analytics, that is scan section and the other data points, all the analytics part are updated on an EOD basis. Taneji, only the trending stock section, let me repeat again, only the trending stock section is updated during intraday every minute. If you refresh the section every minute, you will see that the data is getting updated. Live prices are being fetched in that section. Thank you, Rajiv ji, again for sending the combination scan. आरुष जी, अगर आप मोबाइल में, if you are trading from, if you are checking the section from web or from desktop or laptop, then you can just click on the reload section. Or if you can, or if you are doing it from your mobile application, then you just need to uh, pull to refresh, and the data will get updated. No, Mukesh ji, that combination is not available on the website. Ekta ji, currently we have RSI daily scans and weekly scans, but currently we do not provide any option to customize those indicators. Currently, we have respective scans only let RSI above 30, RSI above 50, RSI above 70. For customizing for RSI above 60, currently we do not have that. Obviously, we do have request on that, and I will take your request again, and we'll look into it ki how we can provide the respective feature in the near future. और संजीत जी, आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो इसी सेक्शन में मिलेगा, एक्सप्लोर सेक्शन में ही. इट इज ऑन दी वेरी होम स्क्रीन इटसेल्फ इन दी फर्स्ट थिंग. आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स का ये आइकन आपको दिख जाएगा. वी जी, आपको समझना पड़ेगा कौन सा कॉम्बिनेशन स्कैन आपको बनाना है. ऑब्वियसली जो स्कैन अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप जो कॉम्बिनेशन स्कैन चाहे बना सकते हो, बट उसके जो आउटपुट आएंगे यू विल हैव टू असेस इट कि वो जो आउटपुट आ रहे, इधर दैट आउटपुट इज इट हेल्पिंग यू आउट और नॉट. राजेश जी, कॉम्बिनेशन स्कैन्स तो आपको जो भी बन रहा है, दैट स्कैन इज बेस्ड ऑन दी ईओडी स्कैन्स, राइट. तो उसमें जो आपको डेटा आ रहा है वो ईओडी स्कैन्स तक का डेटा है, वो आवर्स तक का डेटा होगा. दैट इज नॉट इंट्राडे पर्पस, क्योंकि आफ्टर मार्केट आज तो कोई डेटा चेंज नहीं हो रहा है ना. ज्योतिर्मय जी, प्लीज नोट दैट सेक्टर रोटेशन का हम लोग का एक अलग से स्मार्ट सेशन होता है, और डेडिकेटेड स्मार्ट सेशन फॉर सेक्टर रोटेशन. प्लीज ज्वाइन दैट. इफ यू डोंट हैव द लिंक और इफ यू डोंट हैव द डिटेल, then please do reach out to the support team and they will send you all the details. Pramod Pati ji, like I said, I cannot create a combination scan setup for intraday trading. मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन स्कैन सेटअप बना के दूं, एंड इफ दैट डजंट वर्क, राइट, तो आप लोग तो मेरे को ही आओगे. सो वी ऑलवेज बिलीव कि इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक योर ओन स्कैन्स एंड मेक योर ओन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग डिसीजंस. बिकॉज आप किसी और के बोलने पे अगर आप ट्रेड्स करोगे एंड इफ दैट ट्रेड डजंट वर्क आउट, देन जिसके बोलने पे आप कर रहे हो उसका तो कुछ नहीं रहेगा, राइट. यू विल बी द वन एट द लूजिंग एंड बिकॉज यू विल बी लूजिंग आउट योर मनी. So it is always recommended and it is always suggested to take your money making decisions by yourself rather than relying on someone else. But still, अगर आपको combination scan setup बनाने के लिए कोई भी help चाहिए, then please do reach out to our support team and they will guide you to the respective section and will guide you on the same. Thank you, Taneji, for your such a positive feedback. So I guess I have resolved all of the queries. And अगर आप लोग की कोई भी query अभी भी still pending है, then I would request you all again कि आप लोग प्लीज हम लोग की सोशल मीडिया पे या हम लोग की सपोर्ट टीम को रीच आउट करिए, एंड दे विल ऑब्वियसली
get those queries to me, and I will try to solve and resolve each all of your queries as soon as possible. रिंकू जी, लाइक आई सेड, आप रिकॉर्डिंग के लिए सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हो, और इफ यू आर अ सोशल मेंबर देन आपको स्टॉक एक्स सोशल पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. Thank you so much, everyone. Thank you for your time. Thank you for your feedbacks. We'll surely keep updating and keep improving ourselves. Hope you all have a good learning weekend. And please, whatever आप लोग ने जो भी आज सीखा उसको प्लीज अप्लाई करिए. प्लीज अपने ट्रेडिंग एंड मार्केट जर्नी को बेटर करिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच एवरीवन.